جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل قیامت کے ساتھ میرے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ۔ سچی محبت ہونا چاہیے، نبی سے حقیقی محبت ہونا چاہیے۔ حقیقی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل جسے ہم ثواب اور نیکی سمجھ کر کر رہے ہوں وہ عمل شریعت میں موجود ہونا چاہیے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تم میں کسی بھی چیز کو لے کر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے اصول دیا، طریقہ بتایا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ تم اس مسئلے کو اللہ کی طرف لے جاؤ۔ ابھی جو ماہ چل رہا ہے یہ ماہ شعبان ہے۔ اس ماہ کی 15ویں تاریخ کو لوگ شب برات کے نام سے مناتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں صحیح تعلیمات سے وہ نا واقف ہیں، جو قرآن و حدیث کی تعلیمات نہیں جانتے۔ ایسے میں وہ شب برات کو بڑی رات تسلیم کرتے ہیں۔ بڑی رات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بڑی رات تسلیم کر کے بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو دلیل میں پیش کرتے ہیں قرآن کی ایک آیت۔ کیا آیت پیش کرتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً اللہ رب العالمین نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں۔ یہاں لیلہ مبارکہ ہے، یعنی مبارک رات جو ہے اس سے مراد لیا ہے شب برات والی رات، یعنی بڑی رات۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن مجید میں لیلہ مبارکہ کہا۔ یہ لیلہ مبارکہ، مبارک رات کون سی ہے؟ ہم قرآن کو پوچھیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جس رات میں نازل کیا ہے یہاں اس رات کو اللہ نے مبارک رات کہا۔ ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں میں کس مہینے میں اللہ نے نازل کیا؟ آپ سبھی جانتے ہیں، سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے، رمضان میں آپ بارہا سنتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ صاف لفظوں میں اللہ نے کہا رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا۔ تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، تو یہ مبارک رات کون سے مہینے میں آتی ہے؟ وہ مبارک رات سے مراد کون سی رات ہے؟ اس کا سوال بھی ہم قرآن مجید کی طرف لے جاتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلہ مبارکہ سے مراد مبارک رات جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر والی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر والی رات۔ اب یہ لیلۃ القدر والی رات کب آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم اگر پوچھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر ہم پڑھیں تو صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے واضح کر دیا، تحروا فی لیلۃ القدر، تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من رمضان۔ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں۔ تو لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان میں آخری عشرے میں۔ اب آخری عشرے میں کب ہوگی اس کی وضاحت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ آپ نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تم 21، 23، 25 اور 27 اور 29 ان 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی رات رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں اللہ رب العالمین نے
5 ताखरातों में रखी है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नादिल किया। तो ये बात वादे करनी थी। आम तौर पर बहुत सारे लोग हैं जो इस्लामी तालीमात से, कुरान और हदीस की तालीमात से नावाकिफ़ होते हुए इस तरह की गलतियाँ करती हैं। ये गलतियाँ क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? इस्लाम से दूर होने की वजह से, कुरान और हदीस से दूरी की वजह से होते हैं। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत प्यारा उसूल दिया, बहुत प्यारा उसूल। सूरह आल इमरान की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह। कितना प्यारा उसूल है। इस उसूल को अगर हम अपना लें तो यकीनन कभी गलती नहीं करेंगे। हमें कोई ऐसा, हमसे कोई अमल नहीं होगा जो शरीयत में ना हो, दीन में ना हो। वो क्या है, क्या तालीम है, क्या उसूल है? अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो। वो उलिल अम्र मिनकुम, तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी इताअत करो। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, जब तुम में किसी भी चीज़ को लेकर तनाज़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसूल दिया, तरीक़ा बताया। क्या फरमाया अल्लाह ने? तुम उस मसले को अल्लाह की तरफ ले जाओ। अल्लाह की तरफ ले जाओ का क्या मतलब है? अल्लाह ने हमारे लिए दस्तूर हयात बनाकर जो कलाम नाजिल किया है कुरान मजीद की शक्ल में, उसमें देखो, उस मसले का हल कुरान में तलाश करो। कुरान में नहीं, वर रसूल, तो रसूल की तरफ ले जाओ, यानी अहादीस में देखो तो तुम्हें हल मिल जाएगा। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में आपने उम्मत मुस्लिमा को तालीम देते आपने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तविल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर तुम उनको मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 2 चीज़ों की वजाहत करते फरमाया, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी सुन्नत है। और जो नबी की सुन्नत से मोहब्बत करता है वो किसके साथ होगा? कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। नबी की हदीस है, आपका फरमान है मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मइय फिल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने गोया मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो कल क़यामत के साथ मेरे साथ होगा, कल क़यामत के दिन मेरे साथ। सच्ची मोहब्बत होना चाहिए, नबी से हकीकी मोहब्बत होना चाहिए। हकीकी मोहब्बत का मतलब ये है कि हम कोई भी अमल जिसे हम सवाब और नेकी समझ कर रहे हों वो अमल शरीयत में मौजूद होना चाहिए, कुरान और हदीस में होना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक होना चाहिए। क्या अल्लाह के नबी, अल्लाह ने हुक्म दिया है, क्या नबी ने किया है, क्या नबी के जानिसार सहाबा ने किया है, हमें देखना चाहिए, तभी जाके करेंगे तो नजात मिलेगी। वो अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल होगा, वरना काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह के नबी की हदीस क्या है? मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फहुव रद्दुन। जिस किसी ने कोई ऐसा अमल किया जो हमारे दीन में नहीं, हमारी शरीयत में नहीं, तो क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फहुव रद्दुन, उसके उस अमल को रद्द कर दिया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। तो अमल कैसा होना चाहिए? नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक होना चाहिए, तभी जाके कबूल होगा, वरना कबूल नहीं हो सकता। ये बुनियादी बातें थी जिसे मैंने आपके सामने रखना ज़रूरी समझा। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह ताला हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात पे अमल करने के अल्लाह तौफीक व सआदत नसीब फरमा। कामयाब ज़िंदगी के जो 3 राज बताए गए हैं, अल्लाह इन 3 राजों को हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाने की अल्लाह तौफीक दे। अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखने, घरों को लाजिम पकड़ने, अपने गुनाहों को याद करके रोने की अल्लाह हमें तौफीक व सआदत नसीब फरमा। अल्लाह बिदअत व खुराफात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। शिर्क को
कुफ्र से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम में जो बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको रोज़गार नसीब फरमा। अल्लाह हम में जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। अल्लाह हम में जो बेरोज़गार हैं अल्लाह तो उनको हलाल रोज़ी अल्लाह नसीब फरमा। अल्लाह जो नौजवान तेरे घरों से दूर हैं अल्लाह उन्हें तेरे घरों से अल्लाह करीब कर दे। हमें 5 वक्ता नमाज़ों का बजमात एहतमाम करने की अल्लाह हमें तौफीक दे। जिस तरह जुमा में हम तेरे घरों को आबाद करते हैं अल्लाह इसी तरह 5 वक्त नमाज़ों में तेरे घरों को आबाद करने की अल्लाह में तौफीक और सआदत नसीब फरमा। अल्लाह बहुत ही जल्द मुबारक महीना अल्लाह हम पर आने वाला है। अल्लाह वो मुबारक महीना अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। अल्लाह उस मुबारक महीने की कद्र करते हुए अल्लाह तुझको राज़ी करने और तुझे खुश करने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमा। रमज़ान में अल्लाह रोज़े रखने उसे पाकर अल्लाह तेरी इबादत करने और तेरी तुझसे बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करने की अल्लाह तौफीक और सआदत नसीब फरमा। अल्लाह जो भी जहाँ भी बच्चों में जवानों में मर्द व ख़वातीन में अल्लाह बीमार हैं अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। हमसे पहले जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी ख़बरों को नूर से भर दे। अल्लाह करवट करवट राहत नसीब फरमा। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस आला इलीन में अल्लाह जगह नसीब फरमा। अल्लाह जब तक तो हमें दुनिया में रख, ईमान और इस्लाम की हालत में रख। अल्लाह तो हमें इस दुनिया से उठा तो हमारी ज़ुबानों पर कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी फरमाना। अल्लाह हमारे सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा। अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमा। अल्लाह हमारे दिलों से नफरतों और कदूरतों को अल्लाह दूर फरमा दे। अल्लाह बुग़्ज़ और इनाद को अल्लाह हमारे दिलों से दूर कर दे। अल्लाह हमारे सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा। तेरे दीन को अल्लाह आम करने की अल्लाह तौफीक दे। किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने वाला बना। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीदे को अंजाम देने और हमें दावत इल्लाह के मैदान में आगे बढ़ने की अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह जब तक तो हमें दुनिया में रख, ईमान और इस्लाम की हालत में रख। अल्लाह जब तो हमें दुनिया से उठा तो हमारी ज़ुबानों पर कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।